respected Govinbhai, Jawahar sir, Dr. Nirav Mandir and the team from SRK Exports. A very good morning to you, sir. It's our proud privilege to have you here among us. Today is yet another memorable day for all of us in the Indus University. You are all aware, one of the most beloved sons of Saurashtra soil, Sri Govinbhai Dholakia, Chairman SRK Exports, is here among us. On behalf of Indus University family, I extend a warm welcome to you, sir, and your team. He is here to share his success story and experiences with you all, the budding engineers and the managers. Let me briefly introduce Sri Govinbhai to all of you. All of you know more about him, but I will briefly touch few glimpses of his journey so far. He is a visionary, a pious religious personality, and a avid reader. With no educational background, our forefathers in the diamond business, he single-handedly established his giant brand, Sri Ramakrishna Exports Private Limited. He is as transparent, clear, precise, and brilliant as the diamonds he produces. He always lays emphasis on deeds more than words. Born in 1947 in Dudla village of district Amreli into an agriculturalist family, he knew at the tender age that he had to do something bigger. But little did he know that his childhood dream would make him one of the biggest diamond industrialists of modern India. He left education after 7th standard and moved to Surat, working as a diamond polishing worker. His first salary was ₹103 per month. The entrepreneur in young Govinbhai was awakened as he spent hours with diamonds, and in just 4 years he started his own diamond factory with his two friends and colleagues, Sri Bhagavan Bhai Patel and Sri Virji Bhai Dudhani in 1970. His first import-export operation under Sri Ramakrishna Exports started in 1977. Today, SRK Exports is a name to reckon with and has worldwide operations. Even after 35 years of hard work and success, he is still as jovial and jealous to scale new heights as he was in 1964. He strongly believes that if you have the knack of time management, you can achieve anything. Sri Govinbhai has made significant contributions through his charitable trust in the fields of education, healthcare, social welfare, and women's welfare. He regularly lectures at IIM Ahmedabad and in many other reputed establishments. He has overseas marketing affiliates in Antwerp, New York, Israel, Hong Kong, Dubai, and China. He runs a diamond training institute that teaches the new generation about diamond manufacturing processes. He has a number of family trusts and is associated with about 10 educational institutes. He is also closely associated with various corporate bodies, medical institutions, social institutions, and NGOs. In his contribution to social welfare, he has been felicitating since 2007 eminent personalities like Dr. Sam Pitroda, Dr. Varghese Kurian, Dr. M.S. Swaminathan, His Holiness Sri Dalai Lama, Dr. Sudha Murthy of Infosys, Sri Ratan Tata, and Nobel Laureate Dr. Kailash Satyarthi, and many more. In the field of education, he runs a number of educational institutions. His family trust also runs medical centers at various locations, providing free medical treatment to all the people. His charity trust runs a number of medical centers and hospitals. He has been actively involved in donating to various social activities, water resource management activities, especially for construction of canals and check dams. He is involved in environmental protection activities and providing relief during natural calamities. He received a number of awards and laurels in the diamond industry from various business houses in India and abroad. He recently received the prestigious Leadership Award from US Green Building Council in 2017. He is known all over for his generous charity and looking after the welfare of his team members. He has no airs about himself, and there are very few business developers who have this unique character trait. But this is how Sri Govinbhai is when he is a multi-millionaire now, and this is how he was when he was a farmer.
He always says that there are certain qualities a person needs to possess in order to be successful. And most important of these is that one must value every person and respect him or her. I would not like to take much of the time now. Let all of us hear from the Diamond King himself with bated breath. I am quite confident that the next 90 minutes or so will be more exciting and inspirational for all of you here. Over to you, sir. Thank you. Thank you, sir, for highlighting some important incidents in Govind sir's life. And I'm sure some friends from this group shall pick up a lesson or two and become big entrepreneurs someday. Thank you so much. Now, I would like to invite our President, Dr. Nagesh Bhandari sir, to share his recollections with Shri Govindbhai Dhodakia sir. जय श्री कृष्ण। गोविंद भाई और इनकी टीम को स्वागत करने के लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है कि हम जय श्री कृष्ण बोले। जब मुझे मालूम पड़ा कि गोविंद भाई आज पधारने वाले हैं तो मेरे आनंद की सीमा नहीं रही, क्योंकि गोविंद भाई को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। नॉट एज ए डायमंड वेयर, बल्कि हमारा परिचय कैसे हुआ था कि गोविंद भाई अपने गाँव जाया करते थे, तो अपना जो अहमदाबाद एविएशन एरोनॉटिक्स है उसके हवाई जहाज रखिए अपने गाँव जाते थे। उस समय से हमारा परिचय है। और उसके बाद अगर गोविंद भाई ने अपनी खुद की भी एयरलाइंस चालू करी तो उसमें हमारा कई बार इंटरेक्शन हुआ, इसलिए इस प्रकार से हम परिचय में आए। और हमारा ये बहुत गौरव की बात है कि आज गुजरात का हीरा जो पूरे दुनिया में इतना बड़ा नाम कमा चुका है आज हमारे बीच में है। तो हम सबकी तरफ से इंडस यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वापस से डायस गोविंद भाई के लिए खाली करता हूँ। धन्यवाद। Thank you for sharing the information, sir. Now, here is the moment of excitement. We all are eagerly waiting to hear the success story of the great visionary Shri Govindbhai Dhodakia sir. I now take pleasure in inviting Shri Govind sir and share inspirational mantras of a successful journey. We have been recognized worldwide for our spectacular achievements from you. SRK has ultra-modern, fully advanced air-conditioned facilities at Surat that are committed to green initiatives and are a member of the US Green Building Council. It's the first where the total workforce of 1,800 master artisans work in the comfort of an air-conditioned environment. We have been recognized worldwide for our spectacular achievements. From numerous awards to accolades, being Manufacturer of the Year, we have achieved it all. But truly, our greatest achievement is just one. Seeing the smile on our clients' and customers' faces when they beheld one of our creations. The year was 1964, and a 13-year-old boy, Govind Dhodakia, started his journey from a small village in Saurashtra to Surat, where he took up the job of a diamond worker. His self-belief inspired him to start a small company along with his two partners. He started all this with a loan of 500 rupees. He has only one passion and one principle: honesty. His motto in life is, dream big, but dream with your heart. SRK today has a team of trained craftsmen and highly trained engineers who undergo rigorous training prior to and during their tenure at SRK. Employee welfare is given top priority.
The facilities for our employees include sprawling cafeterias serving nutritious hygiene food, a library to partake in reading sessions, an auditorium for training, and a sports complex to bring out the inner sportsman in them. SRK provides its employees various benefits such as recreational activities, competitions, awards, medical benefits, skill development programs, and support to their families. SRK is committed to giving back to the community, and we believe in contributing to social, ecological, and national welfare. We at SRK are dedicated to share our successes with the less privileged people. For this, we have tied up with well-known social welfare institutes so that we can truly help those in need. Sri Ramakrishna Knowledge Foundation, SRKKF, the CSR initiative of SRK, has thus been initiated for orchestrating a grand tomorrow, a grand India. SRKKF associates and collaborates with individuals and institutions that are carriers of hope to millions across the world. We support distinguished real-life heroes and foundations who have sacrificed their entire life serving others with hard work, perseverance, and an indomitable spirit. Women Empowerment also plays a pivotal role as a part of our philanthropic mindset. Providing funds for many medical camps and donating free medicines to promote a healthy India are part of our regular activities. We firmly stand by the people of the nation during natural calamities like earthquakes, floods, or famine. We aim to support the restoration of their lives, morally and materialistically. Our ventures include Kalam Health Project, SRKIT Relief Centers, Santopa Awards, IIMA and SRKKF Annual Lecture Series, Distinguished PGPX Faculty Award and the School Empowerment Program. Like the products we create. We are Sri Ramakrishna Exports. Pure. Wow, the video speaks volumes. I now take pleasure in inviting Shri Govind Sir to the dais and share the inspirational mantras of his successful journey.
વહેલું મળ્યું છે. નાગેશ ભંડારી સાહેબ અને મેજર જનરલ ડોક્ટર SS દસાકા સાહેબ, ડોક્ટર RK સિંહ સાહેબ અને આ ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીની આખી ટીમ, આપ સૌ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન, મિત્રો, ભગવાનની દયાથી આજે આપ સૌને મળવાનું થયું એમાં કોઈ ઈશ્વરની યોજના હશે. કારણ કે હું પોતે માનું છું કે આખી સૃષ્ટિ કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિ એનું સંચાલન કરી રહી છે અને ઈશ્વરની યોજના મુજબ બધાનો આપણો મિલાપ થયા કરે છે અને જુદાઈ થયા કરે છે. એટલે ઈશ્વરની યોજનાથી આપણે આજે મળવાનું થયું છે. ઈશ્વરની યોજના બનતી જ રહેશે, સારા માટે પણ બને, ખરાબ માટે પણ બને. જ્યારે આપણા સદભાગ્ય હોય ત્યારે આપણને સારા માણસો, સજ્જન માણસો નો સંગ થાય છે અને જ્યારે આપણા દુર્ભાગ્ય હોય ત્યારે અસામાજિક ને ખરાબ ને ખોટા માણસોનો સંગ થાય છે. આપણે બધા લખી છીએ કે આજે આપણે બધાને મળવાનું થયું એ સારા, સંસ્કારી અને સાત્વિક લોકોનો અહીંયા મેળાવો થયો એ આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. એમાં કઈ તમને શંકા છે આપણે સાત્વિક છીએ એમાં? લે હાલ બોલવાનું છે. मिले हैं या हमारा ये प्रवचन सुना है, ऐसा कितना है? ओ 1 2 3 बात ताली बजाओ. हम सब पहले एक हो जाते हैं क्योंकि मैं प्रवचन करने को नहीं आया, आप सब लोगों से बातचीत करने को आया. तो हम सब लोग साथ में मिलकर बातचीत करेंगे. तो मैं पहला मेरा परिचय साहब ने दिया, फिर मेरा कैसेट भी आया और मैं तीसरी बार मेरा परिचय असल दूं. ये सब रंग रोगान बना के होता है. असल में क्या है? तो ये असल में गामड़ियों को I am from Dudhala, Lathi Taluka. Dudhala is too small village, only 700 people that time. And my village school only 1 to 4, 5, 6, 7 I go to Lathi. But I study only 7, but I can't give 7th exam. That's why I have certificate only 6.
population only 275,000, not 10 lakh. Today 6 million, 60 lakh. 20 times Surat, only 50 years. So I see that time, today how many diamond cutting and polishers? Near to 1 million. That time only 200. That time I come to Surat. How is my English? अनपढ़ लोग की इंग्लिश ऐसी होती है, विदाउट ग्रामर। In the world, grammar want only 2 countries, British and India. Why? Because British has its mother language, India has largest speaking English in the world. That's why only 2 countries want grammar. That's why I can't speak in India, English, because here want grammar. Rest of the countries in the world, wherever we go, don't want grammar. कारण के मैं अगर जर्मनी गया, फ्रांस गया, जापान गया, स्विट्जरलैंड गया, स्वीडन गया, वहाँ जाके मैं मेरा इंग्लिश बोलूँ ना तो वो लोग को क्या लगता है कि उनको तो बराबर आता है, हमको नहीं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मित्रों, ये मेरी पहचान मैंने इसलिए की कि ऐसा नहीं मैं आप लोग जो है वो तो कहीं लोग बोलता है ना गोल्ड स्पून से जन्मे हैं, सिल्वर स्पून से जन्मे हुए हैं। हम लोग तो ऐसे गांव में थे, वहाँ 11 साल ये पैर में चप्पल नहीं देखा, यही स्थिति में थे। तो आप लोग हमारे से बहुत भाग्यशाली है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं। सो यू कैन इन योर लाइफ। एक कॉन्फिडेंस आपको दिलाने के लिए ये बोल रहा हूँ कि मेरा पहचान असल ये है, तो आपको असल पहचान हो गया। पहला ऐसा लगता है कि हम आएगा स्पीकर कौन होगा, कितना बड़ा आदमी होगा, कैसे होगा। कुछ नहीं है, मैं आपसे छोटा था, आपको सबको मालूम हो गया। फिर भगवान की दया से मैंने 6 साल फैक्ट्री में काम किया। दैट आई एम ओरिजिन डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग वर्कर। आफ्टर वी स्टार्टेड फैक्ट्री, हम 3 फ्रेंड साथ में काम करते थे। तीनों ने मिलकर किया कि चलो हमारा फैक्ट्री शुरू करें। तो हमारा 2 पार्टनर के पास 2,000 रुपया था, मेरा पास 1,000 रुपया था। 5,000 में कंपनी शुरू की 1970 में और 2 वर्कर के साथ। तो फिर बढ़ता ही गया। क्यों बढ़ता गया, कैसे बढ़ता गया, एक मैं बात आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको अभी जो एक टिप देने वाला हूं वो है कि आप भारत का भविष्य है, भारत का भावी है और आपके ऊपर बहुत अपेक्षा है राष्ट्र को। तो आप आपकी जिंदगी में कभी भी गलत काम मत करना, गलत रास्ते में मत जाना। क्यों कि सब लोग ऐसे सोचते हैं, मानते हैं कि पैसे के लिए झूठ करना ही पड़ता है। उससे गलत बात ये दुनिया में कोई बड़ी नहीं है। गलत से गलत बात है कि पैसे के लिए हमको झूठ बोलना पड़ता है। मैं आपको ये वादा देता हूं कि हमारी कंपनी यहाँ तक पहुंची। आपने देखा हमारे पास 6,000 लोग हैं। अभी कंपनी 1.2 बिलियन में 8,000 करोड़ का कारोबार कर रही है। 8 देश में ऑफिसेज है।
150 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट जाता है। ऑनलाइन बिजनेस है, B2B, 24 घंटा चलता है। मोर देन 75% सेल हमारा ऑनलाइन है। ये बंधु होने के बाद, इतना कारोबार होने के बाद भी हम जिंदगी में एक भी बार गलत नहीं बोले, एक भी टाइम। मैं हमारा, आपको तो मालूम नहीं मैं गलत बोलता कि नहीं बोलता, मगर हमारा पूरा डायमंड मार्केट में हमारा ओपन चैलेंज है कि मैं पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार अगर गलत बोला, नहीं, ऑल हमारा, ऑल रामकृष्ण, ऑल स्टाफ, ऑल पार्टनर, इसमें से एक भी बार अगर कोई पैसे के लिए, बिजनेस के लिए गलत बोला तो हम बिजनेस छोड़ दें। इतना हमारा ओपन चैलेंज मार्केट में है। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि पैसा के लिए झूठ बोलना एक गलत बात है। क्यों? कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं। तो आप लोग, सत्य की इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है, इसको कोई किसी की साक्षी की जरूरत नहीं रहती है। ये सत्य ही सत्य रहता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो उसमें 5 पॉइंट है। पैसा, आर्थिक लाभ के लिए सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद होना चाहिए। दूसरा है गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु कौन? तो हम आश्रम में चले जाए, वो गुरु की बात नहीं है। अगर यहाँ आप पढ़ रहे हैं, आपका क्लास में जो प्रोफेसर साहब आते हैं वो आपका गुरु हो गया। मेरे को जिसने डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सिखवाया मेरा गुरु हो गया। गुरु एवरी डे मिलते हैं, एवरीवेयर मिलते हैं। तो गुरु का अपने ऊपर कृपा होना चाहिए कि मैं उनको बराबर सिखाऊं, कोई भी काम। तीसरा होता है भगवान हमारे साथ होना चाहिए। वो अदृश्य शक्ति जो है, वो अगर हम चाहे ऐसा अगर कोई काम हो जाए तो उनको बोलते हैं भगवान की कृपा। ये किसका सेंटेंस है? मोरारी बापू। मोरारी बापू बोलते हैं कि अगर हम चाहे ऐसा काम हो जाए तो उनको बोलते हैं भगवान की कृपा। अगर हम नहीं चाहे, ऐसा भी बहुत कुछ जगत में हो रहा है, उनको बोलते हैं भगवान की इच्छा। तो एक कुछ भी चल रहा है पूरी दुनिया में, ये भगवान की, उनकी शक्ति, उनका आयोजन, इससे चलता है। तो हम भगवान खुद नहीं है कि हम जो चाहे वो 100% ऐसा ही हो जाए कि हम चाहे। भगवान खुद आवे नहीं, राम आया, कृष्ण आया, तो उसका खुद जो चाहते थे वो 100% नहीं बना। अगर बनता तो रामचंद्र भगवान वन में जाते, क्यों जाते? राज नहीं करे। अगर वो चाहे ऐसे नहीं होते। एक शक्ति से, अदृश्य, ये उनकी मुसाबिक सब कुछ होता है। और 2 बात रहेगी, 3 हो गया, 5 हो गए। माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, और 2 हमारा प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ। ये 5 जब इकट्ठा होता है तब हमारे को सक्सेस, हम जिसको बोलते हैं, हम सक्सेस होते हैं। प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ। प्रारब्ध क्या होता है? तो पुरुषार्थ का जो फल है उनको प्रारब्ध बोलते हैं। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप हर दिन आते हैं कॉलेज में, हर दिन लेसन करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत रीड करते हैं, उनको हो गया पुरुषार्थ। तो ये क्या बनता है? प्रारब्ध बनता है इससे, और आपका लक बनता है। उसको हम भाग्य माने, लक माने, प्रारब्ध माने, ये बनता है। तो प्रारब्ध
प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ दोनों होना चाहिए। अगर हम अकेला पुरुषार्थ करें, हमारा प्रारब्ध में नहीं है, तो हमको नहीं मिलेगा। मगर प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि प्रारब्ध जब यूज होता है तब छोटा खलास हो जाता है, उसका स्टॉक घटता जाता है, कम होता जाता है, और पुरुषार्थ से वो बढ़ता है। तो दोनों में बड़ा कौन हो गया? पुरुषार्थ। वो हमारे हाथ में है। जैसे हम पत्ते रमते हैं, गंजी पत्ते, और हमारे हाथ में जो पत्ता आता है उनको बोलते हैं प्रारब्ध, क्योंकि हमारे भाग्य में लक में है, ऐसे पत्ता आता है। उसमें तो सबको रानी बादशाह ये कोई चाहिए नहीं। अगर सबको नहीं मिलता उनको बोलते हैं प्रारब्ध। हमारा भाग्य में क्या है? मगर हमारा भाग्य में जो पत्ता आया उसको हम सही ढंग से खेले, उनको बोलते हैं पुरुषार्थ। जो भी पत्ता आया उनको सही ढंग से हम खेले। तो आपने बोला कि गोविंद काका ने, मेरा नाम गोविंद काका है इसलिए मैं गोविंद काका बोलता हूँ, क्योंकि मेरा भतीजा सब बिजनेस में आ गया तो पूरा मार्केट में गोविंद काका हो गया। ये पूरा सूरत में, पूरा गुजरात में। तो आपको जान के आनंद होगा कि सूरत में खाली आप ऐसे आवे बोले कि आज काका मिले थे तो सब लोग समझ जाए कि गोविंद काका होगा। ऐसे कलेक्टर, कमिश्नर सब लोग काका ही बोलते हैं, तो मेरा नाम काका उपनाम हो गया। तो ये गोविंद काका हम बोलेंगे, इसलिए हमारे कंपनी में भी हम बॉस नहीं बोलते, सर नहीं बोलते, शेठ नहीं बोलते। कंपनी में किसी को भी काम है तो ऑपरेटर को फोन करेगा तो वही बोलेगा मेरे को अंकल को मिलने का है, तो ये काका का नाम हो गया। इसलिए आप काका से बात हम करेंगे, काका का नाम। तो आपको ऐसा लगे कि काका ने जो गंजी पत्ता का एग्जाम्पल दिया तो काका तो पत्ता खेलता हो। आपको जान के आनंद होगा कि डोंगरी जी महाराज ऐसे बोलते थे कि जुआ खेलना वो बड़ा पाप है। इस दुनिया में 4 आइटम जो है दुनिया में, उसको बोलते हैं असामाजिक, और अपना जिंदगी के लिए खराब रास्ता, जिसको हम बोलते हैं झूठा रास्ता, खराब रास्ता। 4 है इसमें। कौन सा 4 है? तो एक तो आप सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग हो तो पढ़ी होगी। जितने गांधी जी को पढ़ा है सत्य का प्रयोग हो वो ऊंचा हाथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 उनके लिए ताली बजाओ। मगर माफ करना मित्रों, मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग सही नहीं हैं, आप लोग सही नहीं हैं। मेरे से आपसे कुछ लेन देन नहीं है। मैं वात्सल्य भाव से मेरा बेटा समझकर बोल रहा हूं कि यू आर वेरी रॉन्ग। अगर आपने गांधी जी को भी नहीं पढ़ा तो आप जिंदगी में क्या कर सकेंगे? आप कैसे आपका फ्यूचर की आप मानते हैं कि मेरा फ्यूचर बनेगा? जो महात्मा गांधी, जिसको पूरा दुनिया मानती है, पूरा दुनिया में 700 करोड़ में से 500 करोड़ लोगों को पहचानते हैं, और आप भारतवासी होके गुजरात में रहकर गांधी जी को नहीं पढ़ा तो आपका कैसे विकास होगा? आपको कैसे आप राष्ट्र की संपत्ति बनेगी? तो एक दुख की बड़ी बात है, और इसमें दोष आपकी एक इंस्टीट्यूट का भी है, आपका माँ बाप का भी है, और आपका सबसे बड़ा आपका है, क्योंकि आप बच्चे नहीं है। अभी कोई दूसरी तीसरी में आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। तो अगर आप इतनी अच्छी बुक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे भी
लंदन गया, उनका मैरिज हो गया था। उनका मैरिज 13 साल की उम्र में हुआ था, 13 इयर्स, गांधी जी का मैरिज। और वो जब पढ़ने को, कॉलेज करने को लंदन गया तो उनका मैरिज हो गया था। वो उनकी माँ ने गांधी जी को बताया जब यहाँ से जा रहा था कि बेटा तू अभी फॉरेन जा रहा है, तो वहां जाके एक तेरी माँ की 3 बात याद रखना, मांस, मदिरा एंड मोहिनी, ये 3 का तुम त्याग करेंगे। तो गांधी जी ने खुद लिखा है, अगर आपने पढ़ा नहीं है, मैं आपसे क्या बात करूं, अगर आप बोलते कि हाँ मैंने पढ़ा है, तो जब लंदन में ऐसी बात हुई कि एक छोकरी उनके पीछे पड़ गई, तो गांधी जी ने तभी उनकी माँ जो उनका शब्द था कि तुम जाएगा मगर 3 का त्याग करेगा, तो ये मोहिनी का त्याग करने का था। इसलिए उसने वो लड़की को बोल दिया कि तू मेरी बहन है, मैं तेरे साथ फ्रेंडशिप रखूंगा, तेरे साथ बात करूंगा, मगर बहन समझ कर करूंगा। क्यों कि मेरी माँ का मैंने प्रॉमिस दिया है कि मैं 3 का त्याग करूंगा। तो ये जो बात है, अगर आप गांधी जी को नहीं पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? आपको भी ऐसा ही जिंदगी में बहुत समय आएगा, तो कब आप बचेंगे? तो ये 3 बात हो गई, मांस, मदिरा एंड मोहिनी, नॉनवेज और दारू और अल्कोहल अने मोहिनी, 3, और चौथा है जुआ। असामाजिक में 4 आता है। अभी यू आर वेरी लकी कि ये 4 में से आप किसी में भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला था जब मैं आया कि आप ये सात्विक लोगों का मिला हुआ है। ये मेरा में हम बैठे हैं कि सब लोग सात्विक है, क्योंकि 4 जो आउटलाइन है इसमें से आप में तो कुछ है ही नहीं किसी को। मगर ये जिंदगी हम चाहे ऐसे रेलवे ट्रैक की तरह एक सड़की नहीं चली जाती। अपनी लाइफ जो है वो नदी का प्रवाह जैसी है, कभी नदी शांत चलती है, कभी फास्ट चलती है, कभी वो घुमरी लगाती है। हमारा जीवन ऐसा है, कभी एकदम सरस चलता है, शांत चलता है, कभी फास्ट चलता है और कभी घुमरी लगाता है। तो आपका जीवन में आज का जो भगवान ने आयोजन किया सेमिनार का, ये है कि अभी आपकी जिंदगी में ये 4 से आप बचेंगे। कौन सा? जुआ, मांस, मदिरा एंड मोहिनी। और आप इसलिए बचेंगे कि डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते थे कि जो पालन नहीं करते खुद, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। तो मैं पालन करके बोल रहा हूं, इसलिए आपको उनका असर होगा। तो आप ऐसे बोलेंगे कि भाई अंकल, हम ये बात तो समझा कि आपने जुआ नहीं खेला, मांस नहीं खाया, मदिरा नहीं पिया, मगर मोहिनी तो काटी तो है। जो लग्न होता है वो देवों की साक्षी में होता है, ये पाप की बात नहीं है। पति पत्नी दोनों जो भोग भोगते हैं उनको पाप नहीं माना जाता है। ये सर्व शास्त्र सम्मत है, सोशल, सामाजिक सब है। तो उनको इसलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपके मन में कोई भी बात रह नहीं जाती। अभी बात आपको जान के आनंद होगा कि डोंगरे जी महाराज ने 47 इयर्स एगो ये सेंटेंस बोलता कि जुआ खेलना नहीं चाहिए, नहीं तो हम एक
जनरेशन की कमानी है, 2 है, 3 है, 100 साल का है, 200 साल का है, मगर अगर जुआ जो खेला तो एक रात का खेल है, एक रात में 200 साल की कमानी खत्म हो जाएगी। क्यों? कि जब पांडव कौरवों की हम बात सुनते हैं तो पांडवों जुआ खेलने को बैठा कौरवों के साथ भाई भाई, और वो सब कुछ हार गया। उनके पास राज्य था, वो राज्य चला गया, कुछ नहीं बचा। तो उसने बोला भाई तेरा राज्य तेरे वापस मिलेंगे, पर और एक चीज रखो। तो बोले हमारे पास और तो अभी कुछ रहा नहीं, तो क्या आपके पास आपकी पत्नी द्रौपदी तो है, उनको रखो। तो द्रौपदी को रख दिया कि अगर हम हार जावे तो हम द्रौपदी आपको दे देवे, और हम जीत जावे तो हमारा राज्य आप वापिस दे दो। तो दुर्योधन के साथ तो उनका मामा शकुनी था, तो वो प्राण वो जीते ऐसे तो कोई था ही नहीं संजो, और हार गया तो द्रौपदी को हार गया। हम लोग सब मानते हैं कि दुशासन बहुत खराब है, दुर्योधन बहुत खराब है, उसने द्रौपदी का चीरहरण कर किया। मगर आप लोग ने कभी ऐसा सोचा कि पांडवों की गलती थी, उसने अगर जुआ नहीं खेला होता तो राज्य हार जाता, महाभारत की लड़ाई होती नहीं होती। अगर जुआ नहीं खेला होता तो महाभारत की लड़ाई नहीं होती, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। ये जुआ इतना खराब है। मैं सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जुआ का दाम कहाँ है? जुआ खेलने का स्थान तभी लास वेगास में खाली 3 ही होटल थे और हर दिन 20 प्लेन आता था। आज अनेक होटल हो गई, 3 होटल बड़ी बड़ी 8-8 हजार रूम की एक होटल, 8,500 रूम होटल में है बड़ी। तो 800 नहीं, 800 नहीं, 8,000 रूम, इतनी बड़ी होटल। और हर दिन कितनी फ्लाइट आती है? 500। 20 का मैं साक्षी हूँ। 20 फ्लाइट आती थी 87 में लास वेगास में, आज 500 फ्लाइट आती है। क्यों आती है? सब जुआ खेलने को नहीं आता है। देखने लायक प्लेस हो गया, टूरिस्ट लोग सब जाते हैं। मगर जो वहां जाता है $1 भी रमता है। ये गोविंद का को आपको पागल लगेगा। एक ही ऐसा है कि 20 टाइम गया है, $1 भी अभी तक जुआ नहीं खेला, एक भी। लास वेगास में हर दिन कितनी होती है? मिलियनों में। हर दिन 25 से 50 हजार करोड़ का जुआ खेलता है वहां खाली लास वेगास, पूरी दुनिया आती है। मगर कांग्रेस महाराज का एक शब्द पर, मैं वो तो जुआ की बात तो जाने दो, मैंने कभी शर्त नहीं लगाया। आप अगर बोले कि ये माइक मैं बोलूं यहाँ है, आप लोग ऐसे बोले नहीं माइक वहां नहीं है, तो मैं बोलूं चलो लगाओ शर्त। ऐसा भी मैं फिर भी मैंने कभी शर्त नहीं लगाई। शर्त कौन लगाता है? शर्त कौन लगाता है भाई साहब? अभिमानी लोग, ईगोनेस, आई एम समथिंग, मैं ही सच्चा हूं, वही शर्त लगाते हैं। शर्त लगाना ये जिंदगी का सबसे बड़ा हमारा लाइफ डाउन जाने का रास्ता है। अगर शर्त लगाने का, इससे वो अपना मालूम नहीं पड़ता है। जुआ में क्या होता है? हम अगर हार जावे तो हमारा सब कुछ खत्म, अगर जीत जावे तो
अनिति का पैसा है, वो हम बिजनेस करके मेहनत करके नहीं लाए, तो वो अनिति का पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा और हम हार जाएंगे तो भी जाएगा। जुआ में दोनों होते, हमारी हार हुए या जीत हुए, मगर दोनों में हम खत्म होते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में ये 4 काम आप कभी नहीं करेंगे। बोलो, पहला कौन सा? सबसे पहला जुआ पर जुआ, दूसरा मांस, तीसरा हीरा, चौथा अभी थोड़ा मुश्किल काम आ रहा है, क्योंकि ये चारों का जीवन पर त्याग जो करेगा उसको ये गोविंद काका को भविष्य देना का है ऊंचा हाथ करके। मैं ये चारों चीज में से पूरा और आप लोग जो कर सके वही उच्चार करेंगे। क्यों कि पानबाई का एक भजन आता है सौराष्ट्र में, वचना विवेकी जे नर ने नारी पानबाई ब्रह्मादिक लागे तेने पाय। जी ब्रह्मादिक देवताओं कोने पगे लागे? जेने वचનમાં વિવેક હોય। એટલે હું તમે ઊંચો હાથ કરશો પછી તમે આ 4 માંથી એકનો ભંગ કરશો તો હું જોવા નથી આવતો, પણ જોવા વાળો કોઈ છે, અદ્રશ્ય શક્તિ ઈશ્વર છે, એ જોઈશે। એટલે વચન બાપા પછી એનો ભંગ કરાય। એટલે હવે જેટલા ગોવિંદ કાકાની વાત માનવાના હોય, કારણ કે આ 4 વાત જેને માને, 4 વાત જેના જીવનમાં હોય, એની જેને કહેવાય સફળતા એના પગમાં આવીને પડે। સફળતા એની પાસે આવે, એને સફળતા પાસે જવું પડે નહીં। એટલે આ સફળતાનું પહેલું પગથિયું છે। સફળ એટલે સફળ તો બધા જવું છે, પણ સફળતા એટલે હું એ કોઈને ખબર નથી। એ હું આપને વાત્સલ્ય ભાવથી તમને હું વડીલ તરીકે સમજાવું કે સફળતા આને કહેવાય। તો હવે આ ગોવિંદ કાકાની 4 વાતનો જીવનભર અમલ કરવાના હોય એ લોકો ઊંચા હાથ કરે। पढ़े लिखे ब्रिलियंट एंड अच्छे लोग हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरी पढ़ता है वो बच्चे लोग अनजान होते हैं, उनको मालूम नहीं था, उनको कंट्रोल करने के लिए खड़ा रहना पड़ता। ये सब लोग तो सब कंट्रोल कर सके यही कैपेसिटी का है, दूसरे का कंट्रोल करे। अभी मेरा क्वेश्चन यही है कि जो लोग ने हाथ ऊंचा नहीं किया उनको ये 4 में से एक भी क्यों करना है?
પાર નથી અને આ જીવની અવળાઈનો પાર નથી. भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर हर दिन. अगर हमारी अवलाई इतनी हम जीव है ना, इसमें मैं भी आ गया, मैं भी जीव हूँ, तो भगवान की कृपा तो सबके ऊपर बरसती रहती है, मगर हमारी अवलाई इतनी है कि हम लोग सुख शांति का रास्ता छोड़ के हम दुख का रास्ता निकालते हैं और फिर हमको चाहिए सुख, हमारा रास्ता है दुख. हमको जाने का है मुंबई, मगर हमने रास्ता पकड़ा है महसाणा और हम चाहते हैं कि हम मुंबई जाएं. ये हमारी अज्ञानता है. अभी तक बार बार आया कि डोंगरे जी महाराज, तो आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि कौन है डोंगरे. मेरा जीवन डोंगरे जी महाराज की कथा में से बना. मैं डोंगरे जी महाराज को पहचानता हूँ क्योंकि मैंने उनकी भागवत कथा 10 सुनी है. डोंगरे जी महाराज मेरे को नहीं पहचानते. वो धाम में चले गए, उनको भी 30 साल हो गया. ये भागवत कथाकार थे और भागवत की कथा में पहले 200-300 लोग ही बैठते थे. हजारों लोग इकट्ठा हुए एवं सबसे पहला ये डोंगरे जी महाराज ने किया और ये लीन होके बोलते थे, भगवान के साथ उनका मन रहता था. तो उनकी कथा सुनने को 1968 में, that time I am only 17-18 years old. आप गिनती मत करना कि अंकल का बर्थडे 47 में है और 68 में फिर तो 21 इयर्स हो जाता है गिनती में, और वो बोलता 17-18 इयर्स ओल्ड. तो ऐसे क्यों गलत बोलते हैं? ऐसा नहीं है. वो मेरी 2-3 साल मेरी बर्थडे का डेट गलत है. क्यों? पहले गांव में ऐसा नहीं कि जन्म से कोई सर्टिफिकेट निकालो लिखाओ. जब स्कूल में जावे तब वो बोले कि भाई उनको जो साहब होता है, एक ही टीचर रहता पूरा गांव में, उनको जो मन में आवे जी चाहे वो लिख दूसरा कुछ नहीं था. तो इसलिए मेरा 49 या 50 में होगा, 47 डाल दिया. इसलिए लगता है क्योंकि मैं 7वीं पढ़ के आया, तो 7वीं पढ़ के आया तो 6 साल में बैठा था, तो 13-14 साल का होगा. मगर 47 का हम गिने तो 17 साल हो जाता है. इसलिए हम मानते हैं कि 2-3 साल उसमें गलत है, इसलिए वो गिनती में नहीं आएगा. तो डोंगरे जी महाराज की कथा से मेरा जीवन बना. कैसे बना ये तो अभी ऑनलाइन में आप कभी भी YouTube में गोविंद ढोलकिया डालेंगे तो बहुत उसमें मैंने अनेक बार बोला है कि डोंगरे जी महाराज कथा सुन के मेरे को क्या फायदा हुआ, कैसे मेरा जीवन बना, कैसे कंपनी चली, उसमें सब कुछ है. इसलिए मैं यही आपको आंसर अभी नहीं दूंगा, मगर इतना बोल दिया तो आप उसमें देख लेगा. तो ना अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर. तो अभी मेरा जो पहचान देने का मैंने आपको असल बोला था वो दे दिया. अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो उनका डिस्कस करेंगे. आपके मन में जो क्वेश्चन है सब मेरे को आता है ऐसा आप मत समझना, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ, अनपढ़ हूँ, मगर मेरे पास खाली नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल. मैंने पूरा दुनिया देखा है, मोर देन 100 कंट्री में मैं घुमा हूँ और इसमें 20 इयर्स ऐसा गया कि मोर देन 30% में बाहर फॉरेन में रहा हूँ. तो मेरे को दुनिया में क्या क्या हो रहा है ऐसे गांव से लेके कि पूरी, क्योंकि गांव में मैंने हमारा लाठी में 12 आना 75 पैसा में फूल खाना मिलता था और 6 आना 37 पैसे में आधा मिलता था. तो 37 पैसे में मैंने आधा भोजन भी होटल में जाके किया है. और 1998 में मैं रशिया गया था. वहाँ एक अमेरिकन होटल में, दूसरे तो कहाँ की वेज मिलता नहीं,
तो शाम को एक अमेरिकन होटल में डिनर लेने को गया, $350 एंट्री का लेता था, डिनर का एंट्री में जाने का, और वहां जाके खाली फूड खाने का। तो 20,000 का डिनर भी लिया है और 6 आने का लंच भी लिया है। तो ये सब एक्सपीरियंस हमारे पास है कि 6 आना में भी खाना खाया है और 20,000 में भी खाया है। और खेत में भी बिना माटी में खेत में सोता रहता था, ऐसे कभी पाथर में का कुछ नहीं, ऐसे पत्थर माटी में। और अल-बुर्जा में दुबई में भी होटल में रहा हूँ, जहाँ 2-2.5 लाख रुपये एक नाइट का है। तो सब कुछ देखा है। मगर ये सब देखने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि सुख दुबई की 2.5 लाख की होटल में मिल जाए और खेत में नहीं मिले, ये बात एकदम गलत है। सुख हमको नींद कैसी आती है, हमारे में नींद कैसा है, हमारा मन कैसा है, तो ये खेत में भी वो 2.5 लाख के रूम से ज्यादा अच्छी नींद यहाँ आती है। कोई फर्क नहीं है, सुख दुख तो मन का खेल है। तो हम अभी बात क्वेश्चन आंसर करेंगे। You have any questions, you can ask. भाई अब्दुल भाई हेलो सर, काका एक क्वेश्चन है मैनेजमेंट का स्टूडेंट होने के नाते। जब रिसेशन आया था तब जब रिसेशन आया था तो सारी कंपनीज जो थी वो अपना स्टाफ हटा रही थी, तो जब रिसेशन आया था तब सारी कंपनीज अपना स्टाफ कम कर रही थी, घटा रही थी। लेकिन आपका ही कंपनी कैसा था, मैंने केस स्टडी आपका देखा है कि आपने अपना स्टाफ कम नहीं किया। आपने अपने मैनेजमेंट को किस तरीके से कन्विंस किया कि आपका प्रॉफिट कम होने वाला है, ऑर्डर्स नहीं मिलने वाले, फिर भी आप उसी स्टाफ के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ बढ़े रहेंगे, और वो आपको कैसे बेनिफिट हुआ आगे जाके, आप उसके ऊपर थोड़ा बताएंगे। धन्यवाद। और ये भगवान की दया से ये हमारी स्ट्रेंथ कंपनी की है, और ये अपना विचार की भी बात है, मगर उसकी अच्छी तरह से मैं समझाऊं तो 20 मिनट होता है, मगर हम 2 मिनट में मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा बात और कर सके। और ये भी आपको ऑनलाइन उनका आंसर भी मिल जाएगा पूरा कि कंपनी में हमने कैसा किया था। तो देखो 2008 में जब वर्ल्ड रिसेशन आया पूरी दुनिया में, तो तभी डायमंड में 1 महीने में 30% प्राइस डाउन हो गया, तो 100 का 70 हो गया। तो अगर बिजनेस हमारी जितनी मूडी है, इसके अगर स्टॉक हमारा 3 गुना है, तो हमारी मूडी खत्म। तो सबको ऐसा पूरा मार्केट में हुआ था। डायमंड में तो 30% कम हुआ था, ऑयल में 50% कम हो गया था। दूसरी कहीं ऐसी आइटम थी कि जिसका एक माइंस थे अफ्रीका में, उसका खाली 10 पैसा कीमत रहा था, 90% कम हो गया था। तो ऐसा नहीं कि खाली डायमंड में कम हुआ था, पूरा विश्व में एकदम डाउन हो गया था। तो हमने डायमंड में भी सब लोग ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला। हमने सोचा कि हम हमारी कंपनी में किसी को वर्कर नहीं बोलते, हम सबको एसआर के फैमिली मेंबर बोलते हैं। तो हमने हमारा पार्टनर सबने बोला कि भाई हमारा फैमिली मेंबर हम बोलते हैं सालों से, और वो है भी, हम व्यवहार भी ऐसे करते हैं कि हमारा फैमिली मेंबर है। सर ये थोड़ा सोफा आपने को थोड़ा, तो मेरे को अंदर जाने का है थोड़ा।
बेचारा हम फैमिली मेंबर बोलते, दूसरी तो कहाँ उनको जगह मिलने वाली है नहीं, तो वो गांव चले जाएंगे, उनका फैमिली का क्या होगा। तो हमने सोचा कि भाई हमारा पार्टनर ने, भाई भांजा भतीजा फैमिली कंपनी है, तो सबने बोला कि अंकल आप एक भूल कर रहे हैं, क्योंकि जब आग लगे तो ऐसा नियम है कि जितना बचे इतना बचा लेने का चाहिए। तो अभी आग लगी है पूरी, तो जितना बचे हम प्रोडक्शन कम कर दे, बंद कर दे, तो हमको बच सके। तो मैंने बोला देखो भगवान हमारे साथ है, भगवान कंपनी भगवान की है, भगवान का नाम से चलती है, क्योंकि कंपनी का नाम है श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट। तो श्री राम कृष्ण दोनों भगवान पसंद थे, इसलिए दोनों का नाम रखा, और लक्ष्मी चाहिए इसलिए श्री रखा। तो श्री राम कृष्ण कंपनी का नाम है, तो भगवान की कंपनी भगवान चलाता है, तो हम चिंता नहीं करेंगे। तो उनको बोला कि हमारा कौन विचार देते हैं, भगवान। तो वो बुद्धिदाता, गीता में भगवान ने बोला है ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धिदाता मैं हूं। आप लोग ने कितना ने गीता पढ़ी? वाह, धन्यवाद। पाछું માથું કૂટવાનું આવ્યું, 90% તો વાંચી નથી। બહુ તમે છેતરાવશો મિત્રો, બહુ છેતરાવશો, મને તમારી દયા આવે છે, કારણ 2.5 કલાક થાય, ગીતા આખી વાંચતા 2.5 કલાક થાય, ઓનલી 2.5 hours। તમારી જિંદગીમાં તમને 2.5 કલાક નથી મળતા, વોટ યુ કેન ડુ। ગીતા તમારી જિંદગીના જેટલા પ્રશ્નો હોય ને, 1 2 3 4 40 50 60 આખી જિંદગીના બધા તમે આખું લિસ્ટ બનાવો પહેલા કે મારી જિંદગીના આટલા પ્રશ્નો, 2.5 કલાકની ગીતા વાંચો, એક પણ પ્રશ્ન તમારો બાકી નહીં રહે, તમારા ટોટલ પ્રશ્નોના જવાબ અંદરથી મળશે। કોઈ દુનિયામાં કોઈ ધર્મ, કોઈ બુકને, કર્મને યોગનો દરજ્જો નથી આપ્યો। ગીતા જેવી છે કે કર્મયોગ કીધો છે, કર્મ એટલે આપણે જે કામ કરીએ એને યોગ કીધો છે, કર્મયોગનો દરજ્જો આપ્યો છે। તો તમે ગીતા બહુ દયામની સ્થિતિ છે, તો ગીતા તો તમે બધાએ 2-4 દીમાં વાંચી જ જાયજો, બરાબર? એના નિયમ નથી લેવડાવતો, ટાઈમ નથી, એટલે અમે બધાને એમ કીધું કે રાખવા જ આપણે, અને ભલે ટાઈમ અડધો કરી નાખો, અને સાચવી લીધા। મિત્રો ભગવાનની દયાથી એ જે 170 થઈ ગયા હતા એ તો એટલા જ રહ્યા ફિનિશ ગુડના, પણ રો મટીરિયલના 50 થઈ ગયા। એટલે રો મટીરિયલ અડધા ભાવમાં મળે, 50 પૈસા મળે, અને 70 પૈસામાં માલ વેચાય। કેટલા ટકા પ્રોફિટ થયું? 40%। 50માં 4 ને 40 ભલે 800 ગણ્યો, પણ ગણિત મને બહુ પ્રિય હતું, એટલે હું સક્સેસ થયો। કારણ કે હું જ્યારે 4થા ધોરણમાંથી 5મા ધોરણમાં આવ્યો ત્યારે વેકેશનમાં મારા અમે ત્યારે જૂની બુક લેતા, નવી લેવાનો તો વેલ હતો નહીં, જૂની અડધા ભાવમાં મળે, તો જૂની બુક અડધા ભાવમાં લઈ અને વેકેશન ખુલ્યું ને ત્યારે મારે આખું ગણિત મોઢે હતું। મને પહેલા દિવસે વેકેશન ખુલતા 5મા ધોરણના ગણિતનું કોઈ પેપર લે તો 100% આવે પહેલે જ દિવસે। એ જાતે બનાવતો, કોઈ સાહેબ નહીં, એટલું ઇન્ટરેસ્ટ હતો ગણિતમાં। એટલે ગણિત તો ઇન્ટરેસ્ટ હતો, અને વેપાર ભાગમાં આવ્યો એટલે હું વધારે સફળ થયો। અને તમને પણ જે સબ્જેક્ટ ગમતો હોય ને એ લેજો, બાકી ન ગમતો હોય એ કામ કરતા નકર તમે સફળ નહીં થાવ। તમને બહુ ગમતું હોય એ કામ કરવું। એટલે હવે આ લોકોને આપણે કીધું એટલે એને સાચવી લીધું, અને પછી 40% નફો એપ્રિલ મહિનાથી ચાલુ થઈ ગયો। બધાને આખા માર્કેટમાં બધાને 40% મળતા હતા, પણ બધાએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તોડી નાખ્યું હતું। આપણી પાસે રેડી હતું, રેડી તો હતું, પછી થયું કે ઓલા કારીગરે 2-3 મહિના 50% જ કામ કર્યું હતું, 75% જ કામ, એટલા કામમાં એક જૂસમાં આવી ગયા હતા ને કે કામ દોઢું કરે, એટલે પ્રોડક્શન 50% વધી ગયું, 40-50% નફો। એટલે કંપની 2007માં 24મા નંબરે ઇન્ડિયામાં હતી, 2009માં 4થા નંબરે આવી ગઈ। ભગવાન એટલે આ તમને શોર્ટમાં કીધું છે, લંબાણ પૂર્વક બધું એમાં તમે હવે સમજી લેજો। બોલો ભાઈ, એની ક્વેશ્ચન પ્લીઝ। સર, તમે ભણેલા તો એટલા બધા તમે પોતે જ કીધું, પણ તમે તમારા ઘડતરથી આગળ વધ્યા,
તો ભણતર વધારે અગત્યનું છે કે ગણતર? બહુ મહત્વની વાત છે. ધન્યવાદ. ભાઈ હું નથી કહેતો પણ દીપક ચોપરાનું નામ તો તમે બધાએ સાંભળ્યું છે. ભાઈ દીપક ચોપરાનું નામ સાંભળ્યું હોય એટલે હું વાત કરું. દીપક ચોપરાનું નામ તમે નથી સાંભળ્યું ને? સાંભળ્યું છે? એટલો સાંભળ્યું હોય એટલો ઉત્સાહ નથી સાંભળ્યું યાર. 3-4 જણાએ નામ દીપક ચોપરા એક 8 કલાકના HRD ના પ્રોગ્રામ કરાવે મોટી મોટી કંપનીઓમાં વિશ્વના. અમેરિકામાં રહેશે, પહેલા તો દિલ્હીના જ હતા, પણ એ અત્યારે $35,000 8 કલાકનો ચાર્જ લે છે. હવે આ 20 લાખ રૂપિયા કે 25 લાખ રૂપિયા જે માણસ 8 કલાકનો ચાર્જ લે સેમિનારનો, દુનિયાનો નંબર 1 મોટિવેટેડ, અને એને તમે નામ નથી સાંભળ્યું યાર, કેટલું કહેવાય. દીપક ચોપરાએ એમ કીધું છે કે તમે લોકો મા-બાપ પોતાના દીકરા દીકરીને પોતાની જે કમાણીમાંથી બચત હોય એ 50% એના એજ્યુકેશનમાં વાપરી નાખે, અને પોતાનો સમય જે બચતો હોય મા-બાપનો એ 50% બાળકના ભણતર પાછળ વાપરી નાખે, અને બાળકના જીવનમાં આ એજ્યુકેશન 15% કામ આવે છે. હું નથી કહેતો, આ દીપક ચોપરાએ જે કીધું એ તમને કહું છું. કેટલા ટકા? આ તમે જે ભણ્યા ને અક્ષર જ્ઞાન, એ તમારા જીવનમાં 15% કામનું છે. દીપક ચોપરાના કહેવા મુજબ હું તો કહું છું 100% કામ. પણ હારે ભણતર ભણે તો આ ભાઈ વાત કરી ગણતર મોટું કે ભણતર, તો ભણતર તો તમે ભણ્યા, હવે તમે ગણતરમાં હોવા જોઈએ. આપણું હારું આ દુનિયામાં આપણા સિવાય કોઈ કરીએ તો એટલે ભણેલા કાંઈ કામ નહીં આવે. અમારે ગફુર દાદા છે વાપીમાં, માઇક્રો ઇન્ક વાળા, તમે કદાચ કોઈ નામ સાંભળ્યું છે. ઈ કે MBA જેના છોકરાઓ આવે પછી ઇન્ટરવ્યુ આપવા આવે, પછી આપણને પૂછે કે મારા આ ખુશી કેટલા લોકો કામ કરશે, એટલે પાછું ગુજરાતી થઈ ऐसे बोलते हैं कि जब इंटरव्यू में MBA वाले बच्चे लोग आते तो बोलते हैं हमारे नीचे कितना लोग काम करेंगे, हमको गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको रहने के लिए फ्लैट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो बोला मन में विचारते कि डोका पहला काम करने को तो उसमें 10% भी नहीं डोबा का मीनिंग समझे, मगर वो अच्छा नहीं है. डोबा सेंटेंस अच्छा मैंने नहीं बोलना, मेरे डोबा का होना है जैसा, ऐसा को डोबा बोलते हैं हमारे काठियावाड़. तो ये बात यही है कि कुछ काम करो नहीं तो दरवाजा मिलेगा. ये याद रखने का जिंदगी भर कि हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारे लिए हम काम करते हैं, हमारा अच्छा हम ही कर सकते हैं, हमारे लिए करते हैं, हम किसी का उपकार नहीं करते, तो हमारे लिए ये काम करना चाहिए. तो हमारा जो भणतर बहुत महत्व का मैं समझाता हूँ कि जब भी कोई भी गाड़ी बहुत अच्छी से अच्छी आपने ली, मगर उसको लाइट नहीं होगी तो रात को चलेगी नहीं चलेगी. कितनी भी अच्छी है, 300 किलोमीटर की स्पीड में जा सकती है,
अगर उनको रात को चलाने के लिए लाइट चाहिए मगर दिन को चाहिए, तो आपका एजुकेशन ऐसा है कि संकट समय में काम आएगा। बाकी तो दिन में चलाने के लिए हमारे जैसा चला आप भी चला सकते हैं बिना पढ़े लिखे, रात को जरूरत पड़ेगी। ये भणतर जो है आपका, ये लाइट का काम करता है। गाड़ी में जैसे लाइट की जरूरत है, ऐसे आपका भणतर की यही जरूरत है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया है। आपकी निगारा से लेके आपकी जो खेती में आप जाते थे, आपकी जो फिंगर थी वो बिल के नीचे आ गई थी, फिर आपको चपटी हो गई थी आपकी फिंगर। उसके बाद आपकी कंपनी में जो आप सुबह शाम आरती करवाते, पूजा करवाते। पर सर एक्चुअली अभी यहाँ पे सारे के सारे यंगस्टर्स हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम यंगस्टर्स में चलता है वो है ईगो प्रॉब्लम, किसी के साथ व्यवहार कैसे करना। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो फ्यूचर में जाके किसी कंपनी को ओन करेंगे, उनके कोई सीईओ बनेंगे या कुछ भी, और कुछ लोग एम्प्लॉयज बनेंगे। बट सर आपकी मैंने स्टोरी सुनी थी वो डॉगी जी महाराज वाली, कि आप फैक्ट्री में काम करते थे और आपने छुट्टी लेके सुबह आप उनके सत्संग में जाते थे और शाम को आप वापिस आपके काम करते थे। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एड्रेस कीजिए कि व्यवहार अच्छा करने से लाइफ में आप कहाँ पहुँच सकते हो। और आपकी जो स्टोरी थी कि आप सुबह गए थे सत्संग सुनने के लिए और शाम को रात को बैठ के आप जो काम करते थे, और उससे आपको फायदा क्या होगा? अभी मैं भाई का वो समझ गया कि वो भाई ने बोला कि आप जो अंग्रेज महाराज के हिसाब से सफल हुए उसका जो स्टोरी है वो आप करो। तो वो तो मैं बाद में करूँगा, मगर आपको एक आनंद आवे और इसलिए मैं एक और स्टोरी आपको बताता हूँ कि जब मैं डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का हम लोग काम कर रहे थे 1968 के दिवाली के वेकेशन में, हम लोग 4 मित्र बम्बई गए पहली बार जिंदगी में। तो बम्बई गया तो सब लोग बोलते वहाँ हिंदी बोलना पड़ता है, वहाँ कोई गुजराती नहीं समझता। तो हम क्या करते कि वहाँ जाके किसी को पूछे कि हम कहाँ जावे, तो ये कहाँ आया, म्यूजियम कहाँ आया, तो हमारी हिंदी तो आपको मालूम हो गई कुछ हिंदी से गुजराती मिक्सिंग हिंदी। तो जब हम जाके पूछते तो सामने वाला गुजराती में बात करे, भाई कहीं हम जाओ जहाँ सब लोग बोलते कि मुंबई में तो सब लोग हिंदी बोलते, गुजराती में कोई समझते नहीं, हम हिंदी में बात करें वो हमारे साथ ऐसे करके हम 3 दिन ठहरे। हमें मालूम नहीं जिंदगी में कभी कि होटल चीज क्या होती है। हम होटल देखा, कृष्णा होटल चाय बनाती, इतना मालूम है। होटल में ठहरने का है वो तो कभी मालूम ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कभी दिन आया नहीं था, कभी सोचा नहीं था। तो हम गेटवे ऑफ इंडिया गया, वहाँ ताज होटल देखा, तो बोला कि ताज क्या है। तो सब लोग ने बोला कि आपको मालूम नहीं, इसमें तो सब लोग मेहमान लोग रहते हैं और यहाँ तो 1000, 2000, 3000 भाड़ा वो टाइम पर 50 साल पहले भाड़ा रहता है। या भाई यहाँ तो महीने 300 रुपया का काम होता है और एक रात का 1000 रुपया वो लोग देते रहने का। इतना हम लोग ताजुब हुआ। तो बोला कि हाँ। तो मैंने बोला अंदर देखने को जाने मिलेगा, तो क्या ऐसे तो नहीं मिलेगा, आपको तो कैसे जाने देंगे। तो हमने सोचा, किसी को पूछा, तो एक आदमी ने हमको बोला अगर आपको अंदर जाने का मैं रास्ता दिखाऊं। तो बोला साहब बोलिए। तो उसने बोला कि आप यहाँ से टैक्सी करो। तभी टैक्सी का मिनिमम चार्ज 80 पैसे थे, 80 पैसे। तो यहाँ से टैक्सी करके अभी ताज होटल आप वे सब लोग गए होंगे, तभी वो 7 माल की एक ही थी, वो 25 माल वाली नहीं थी, वो बाद में बने।
तो 7 माल वाली थी, तो बोला कि आप क्या करो कि टैक्सी में बैठ के, वो उनका दरवाजा ये गेटवे ऑफ इंडिया साइड नहीं था, वो पीछे की साइड था, तो वहां से आप अंदर एंटर कर दो और टैक्सी होगा ना तो आपको कोई ना नहीं बोलेगा, अंदर जाने देगा। तो हम तो टैक्सी करके गए, टैक्सी वालों को समझाया कि 1 रुपया आपको दूंगा, पर हमारे को अंदर छोड़ दो। तो टैक्सी वाला के चलो छोड़ दे। तो जब अंदर गया, सिक्योरिटी वाला ने सलाम मारा, जा गया। पहली बात तो हमको नहीं मारा था, वो टैक्सी को। हमको तो हम नीचे उतरे, अभी कहाँ जाते? तो देखते देखते अंदर गया, सीधा गया नहीं तो पीछे का दरवाजा आ गया। तो वहां 4 थे मित्र, तो पीछे गया तो वहां सिक्योरिटी वाला के चलो चलो बहुत हो गया, तो बाहर निकाल दिया। तो जीजू अंदर जोवानो अपने तो देखने का था, उसने तो बाहर निकाल दिया। फिर ये स्टोरी मैंने कब की थी कि यही ताज होटल में 2003 में जब हम दी बियर्स का मेंबर्स बने, तो हमारा मान में पूरा मार्केट में इकट्ठा होके पार्टी दिया था। 800 लोग वहां हॉल में थे। तो यही हॉल में मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि देखो ऐसा आप हम जहाँ बैठे हैं आप, यहाँ ही हुआ था, क्योंकि वो जो हॉल था ये वहाँ वो यही चौक में हुआ था। तो वहां से हम गया, फिर हम बाहर गया, अभी क्या करें? तो एक रिपेयरिंग चल रहा, वहाँ इतना सिक्योरिटी का तभी प्रॉब्लम नहीं था, तो रिपेयरिंग वाला हमारा सौराष्ट्र वाला था। तो ए छोकरा क्या जाऊ छे? कीधु भाई अंदर जाऊ छे, पण आने तो बाहर काढी मूकी, आखी स्टोरी कीधी। भाई के चालो तमने मूकी जाओ, એટલે એનું रिपेयरिंग काम ચાલતું તો नहीं। पीछे के दरवाजे जो अनऑफिशियल गेट से हमको अंदर लिया और एक सीढ़ी दिखाई कि सीढ़ी के बाद ये रेस्टोरेंट है सामने, अभी आप रेस्टोरेंट में चले जाओ और वहां जाके आपको खाली बोलने का कि टी, आपको टी बोलने का, चाय का नाम टी होता है, तभी हमको मालूम नहीं था चाय को क्या बोलते हैं। तो हमने ओके ओके, तो हम तो वहां जाके टेबल पर चारों लोग उनके बोला ऐसे बैठ गए। और पहली बार ये 5 स्टार में क्या बोले, चप्पल पैर में बूट बूट के, कुछ पता नहीं, मोजा नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो आया, क्या हमने बोला 2 टी, तो वो 2 चाय लेके तो आया, मगर चाय सब अलग लेके आया, पानी 2 कैसे बनाओ? तो सबने बोला क्या करें? तो एक बोला ऐसा करो, पानी निकाला, मुझे चाय की जो पड़ी की दी है उसको खोल दो। होता है तो उसको निकाल के भूखी उसमें डाल दिया। हमको उसमें धोनी में वाली चाय, हम 2 अहमदाबादी के जैसा 2 चाय में 4 नहीं पिया। 2 चाय मंगाई थी, तो 2 चाय मंगा के हमने चारों ने ये भूखी वाला थोड़ा थोड़ा चाय पी। फिर हम ताज होटल में गए, कारखाना में तो कोई माने नहीं, तो उसका सबूत क्या? तो उसने पेपर नैपकिन दिया, उसके ऊपर सिक्का था ताज होटल का, तो सबने वो पेपर नैपकिन दे। फैक्ट्री में जाके बता रहे थे हम ताज होटल में जाके आए, देखो ऐसे गए थे। मैंने वो बोला वो देखो कि ये देखो, एक गोविंदा को जब यहाँ एंट्री नहीं था, एंट्री के लायक नहीं था, यहाँ एंट्री के लायक नहीं था, आज उनका अभिवादन हो रहा है। यही कमाल है। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि सब लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे यंगस्टर ज्यादा ईगोनेस हो गए, बहुत अभिमान आ गया है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि जब से ये सृष्टि का आरंभ हुआ, जब से, तो सब वडील को ऐसा ही लगता है कि न्यू जनरेशन बिगड़ गए। पूरा 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 विश्व को करोड़ों साल से यही लगता है, आज नहीं लाखों साल से।
हम गांव में थे तो हमारा गांव में पूरा गांव में किसी को बाल नहीं रखते थे, क्योंकि हम समाचार से पहले तो हम लोग नहाते नहीं थे। समझ आया कुछ? तो अंदर टोला हो जाता है। टोला कौन निकाले? वहां तो पूरा दिन खेत में रहती थी, तो इसलिए वो आके टका कर दे तो टोला नहीं। तो सबका पूरा गांव में, हमारा अकेला का नहीं, पूरा गांव में किसी को बाल होता ही नहीं था। बाल रखते कोई। अभी ऐसा ट्रेंड आया कि बाल रखने को शुरू हुआ। मैं जब तीसरी में आया मैंने भी बाल रखा, तो हमारा जो वडील लोग वो क्या बोलता था कि अभी छप छोकरा बगड़ी गया। बाल रखवा ना थिया एमा बगड़ी गया, क्योंकि ये पूरा गांव में कोई बाल नहीं रखते, और हम जब चेंज करते हैं तो उनको लगता है बिगड़ गया। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, जनरेशन टू जनरेशन में ऐसा ही है। हम कुछ भी नया करते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, तो वडील के मन में जो पुराना आदत है, ऐसे अगर हमारा बच्चा काम करे तो वो सही, इसके रास्ते में से बाहर निकले तो वो सही नहीं है। मगर यंगस्टर को स्वतंत्र रहना का अधिकार है, मगर स्वच्छंद नहीं बनने का। स्वच्छंद नहीं बनने का, ये दोनों सेंटेंस में फर्क है। इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्र और स्वच्छंद? भाई भाई हमने भाई का खबर से स्वतंत्र तो इंडिपेंडेंट, स्वच्छंद एरोगन एरोगन तो ये नहीं होना चाहिए, वो अपने को याद रखने का। देखो मित्रों, ये जिंदगी में हम लोग आए 100 साल से ज्यादा रहने का नहीं है, और हमारा चलता है खाली 20 साल से 50 साल तक। 20 साल से पहला हमारा कुछ नहीं चलता, और 50 साल के बाद कुछ नहीं चलता। ये मेरे को कहां से ज्ञान मिला? ये 30 साल पहले हमारा एक वडील था, तो हमारा एक मेरा मित्र था ना, उसने 8 साल का बच्चा तूफान कर रहा था, तो उसने छोटा कांकरा लेके, पत्थर छोटा लेके उसका कान में रख के ऐसे दबाया, तो एकदम जोर जोर से वो रोने लगा। वो वडील देख गए कि एक भाई ने उनको एक कांकरा लगाया है, तो उसने वो टाइम में एक सेंटेंस बोला, ए भाई अभी 20 साल पहले तो हमारा कुछ चलता नहीं था, 50 साल के बाद हमारा कुछ चलेगा नहीं, तो 30 साल के लिए क्यों उस बच्चे को परेशान करते हो? ये बात है। तो इसमें मेरा ज्ञान मिल गया कि सही बात, अभी पहला भी नहीं चलता, बाद में नहीं, तो 30 साल से पहले तो आपको कभी भी आई एम समथिंग आना नहीं चाहिए, कभी भी। यू आर नथिंग, वी आर नथिंग, आई एम नथिंग, क्योंकि हमारा कंपनी का सेंटेंस है आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आई कैन बट आई एम नथिंग। ऐसा धरती पर रहने का क्यों? सचमुच में हम कुछ नहीं, हमको क्या आता है? तो मैं सबको एग्जाम्पल देता हूँ कि 1 लाख आइटम हम भेगी करें, 1 लाख में हमारा एक में ज्ञान है 99,999 में हमारा अज्ञान है। हम इतना बड़ा अज्ञानी है, लाख में से एक ही आइटम हमको आती है, फिर भी हम आई एम समथिंग हो जाते हैं। 1 लाख में एक आइटम आती है, इसमें समथिंग हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये हॉल में हमको क्या आता है, बोलो ऐसे आप अभी आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी। आप रास्ते में जाएंगे तो वही देखेंगे, घर में जाएंगे तो वही देखेंगे। आपको क्या आता है? कुछ नहीं। तो ये हमको मगज में रखने का, आई एम नथिंग, आपको ये याद रखने का है कि माइक बनाने को हमको आता है, कोट बनाने को आता है, शर्ट बनाने को, बूट बनाने को आता है, टेबल बनाने को आता है, हमको क्या आता है? लाइट बनाने को आता है। इसमें देखो, आप नजर करो, आप हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आई एम नथिंग। आप दृष्टि दौड़ाओ और वो सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ। देखो कुछ कर सकते हैं।
आपको लगता है? अभी आप जाएंगे रास्ते में सब देखेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता, आई एम नथिंग। और घर में जाएंगे आप सोचेंगे, सब देखेंगे, खाने का आया प्लेट, ये प्लेट में नहीं बना सकता, ये खाना आया, रोटी मेरी माँ बना सकती, मैं नहीं बना सकता। तो ये सब आपको अभी मालूम होगा, आई एम नथिंग। ये बात है जीवन में, तो आप धरती पर रहेंगे, आपका पैर धरती पर रहना चाहिए। आई एम नथिंग को जिंदगी भर याद रहना, कोई सुख है। अगर आई एम समथिंग हुआ, उसका मार से हम पड़ जाएंगे। तो आज से जीवन में व्यवहार में नहीं, जीवन में 4 शब्दों याद रखने का। 4 एक अंग्रेजी महाराज का है, चालशे, भावशे, गमशे અને ભાવશે। ચાલશે, ભાવશે, ગમશે અને ભાવશે। આ 4 જો આપણા જીવનમાં ઉતરી જાય તો આપણી પાસે કદી દુઃખ આવે નહીં। બોલો જી, ચાલશે, लगभग तो बैग હોય બેગ આલી ટોયલેટ ની બાજુમાં મૂકીને બેહી જવાનું પેપર લઈ ટેસ્ટ અને બહુ સારું લાગ્યું। तो यही बात है कि जीवन अपनी साथ रहता, हम अगर सुख दुख मन का खेल, तो हमारा विचार में दुख आया तो दुख हो गया, मन कंफर्ट हो गया, तो यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जो कंफर्ट जोन में रहते हैं उनको कभी भी उनको सुख शांति और प्रगति नहीं होगी। सो यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप अपनी स्टोरी बताओ डॉक्टर महाराज की, तो थोड़ा टाइम बचेगा तो बाद में बोलेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन वो भी है, तो वो भाई ने तो ऑनलाइन सुना होगा, तो आप भी एक अंग्रेजी महाराज की जो स्टोरी है मेरा, वो आप उसमें से सुन लेना कि मैंने सबको मान देने को सीखा, इसलिए सबको मान दिया, मेरा प्रवृत्ति हुआ, वर्कर को मान दिया तो सब वर्कर हमारे वहाँ आए, और आज भी सबको मान देता हूँ। ये मेरा 3rd जनरेशन सब साथ में है भाई, मतलब सब लोग यहाँ आए, तो उनको सबने जन्म से 3rd जनरेशन को मैंने कभी तू नहीं बोला, आप ही बोला जन्म से। तो ये उनका राज क्या हो गया कि 2nd जनरेशन को कभी नहीं बोला तू, और 3rd जनरेशन को भी नहीं। इसलिए ये 47 साल में मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, क्योंकि मैं ये सब लोगों को आप बोलता हूँ। ये मेरा भतीजा का बेटा है ध्रुवल भाई, तो मैं संयम भाई है, ये मेरा भतीजा का बेटा है, और ये भी भतीजा का बेटा है दर्शन, और ये मेरा भांजा का बेटा है राज, और ये भी मेरा भांजा का बेटा है उत्कर्ष। ये सब लोग मोस्टली लंदन, अमेरिका 2 साल ऐसे पढ़ के आए हैं, अभी कोई पढ़ रहे हैं, और इसमें से 3 लोग वे जो 1 महीना अनजान अवस्था में जाते हैं, उसमें 3 लोग करके आए हैं। ये हमारा फैमिली में नियम बन गया है कि कोई भी बच्चा जब कॉलेज में आते हैं तो उसको 1 महीना अनजान अवस्था में चले जाने का। तो अभी कैसे
पहले क्या करते वो देख लेते कि कौन से सिक्के में काम है। बाद में तो मोबाइल साथ में नहीं देते, कुछ नहीं, मोबाइल दिया था मगर वो 1000 रुपया वाला कुछ अंदर दिया, कॉन्टेक्ट करने का है तो कभी कर सके वो। और यहाँ एक ही नंबर, हमारा फैमिली में किसी को मालूम नहीं रहता कि बच्चे कहाँ गया, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टोरी बनाते हैं। एक बार सबसे पहला मेरा बेटा गया था 13 साल पहले, 5 लोग, तभी भी मेरा भांजा भतीजा ये सब गया था। तभी एक ऑनलाइन है वो भी स्टोरी, रुपयानी कदर, उनका नाम है रुपया की कदर। तो ये मेरा बेटा श्रेयांश की स्टोरी है, आप पढ़ लेने का, तो सबकी यही स्टोरी रहती है। तो ये सब बच्चे यही मानते हैं कि हम 4 साल कॉलेज किया और 1 महीना हम ये अविनाश में रहा, तो ये 1 महीना का नॉलेज 4 साल से ज्यादा मिल जाता है। ये स्थिति है। मगर कितना वेट मिला था 1 महीने में तेरा? 7 kg, 7 किलो वजन 1 महीने में कम करके आए थे, क्योंकि एक भी आदमी पहचान वाला वहां था नहीं, नो लैंग्वेज, कोई सब कुछ भी समझदार नहीं है वहां जाके काम करने का और रहने का। कोई एक अलग एक्सपीरियंस, तो पूरा जिंदगी भर हमेशा उनको, ये सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं कभी किसी को सलाह नहीं दी, कभी नहीं। मैं कभी कचकच वडील होने के नाते तेरे को ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, कभी किसी को नहीं बोला पूरा फैमिली ने। और सब लोग मेरा रहा क्यों, मैं कुछ कहता नहीं, मगर उनको कोई क्वेश्चन है, अगर मेरे को क्वेश्चन पूछे तो मैं सब कुछ समझाता हूँ, मगर मैं उनको सामने से सुधारने के लिए कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बिगड़े ही नहीं है मेरी दृष्टि से। तो मैं सुधार करने के लिए कोई बात कभी नहीं करता। तो दर्शन भाई तुम्हें क्या दिया? हैदराबाद। ये 1 महीने के लिए। उत्कर्ष भाई इंदौर। तो ये सबकी ये उसमें आप मिल जाएगा कि उसकी क्या क्या स्थिति है, सबकी स्टोरी करें। तो ये लोग जब वापिस आए तो पूरा फैमिली को मालूम नहीं था, बम्बई वाला सब हमारा फैमिली घर में आ गया कि आज हम गैदरिंग रखा है, और बच्चे लोग ऐसे प्लान करके एक साथ में आते हैं जाते हैं एक साथ में ऐसे, क्योंकि हम पहली स्टोरी ऐसी बनाई थी को स्की करने के लिए हिमालय जा रहा है, 1 महीना नहीं आएगा और पुराना कपड़ा पहन के जाएगा, पूरा बूट पहन के जाएगा, ऐसा सब स्टोरी बनाते हैं कि कोई पहचान नहीं जा रहा। ऐसे ये लोग जब आए, हमारा अभी 1 साल की बात है, तो पूरा फैमिली 4-5 कलाक रहता नहीं, 5 घंटे तक पूरा फैमिली 5 लोग 5 बच्चे की स्टोरी 1-1 घंटे की सुनी कि यहाँ से गया, बाद में क्या हुआ, किसको मिला, क्या हुआ, रोते जाते, बात करते जाते, पूरा फैमिली रोते हैं। तो ये जो एकदम उसका जो फैमिली का पूरा बॉन्डिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, ये जो होता है वो बहुत हो जाता है, क्योंकि लागणी सबको ऐसी एक साथ में ये बॉन्डिंग जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। तो ये भगवान की दया से जो ये जो मिला ना, हमारी कंपनी में 8,000 करोड़ का कारोबार, 6,000 लोग, ये सब कीमत है, कीमत और मूल्य में फर्क है। तो हमारी कंपनी कीमती है, इसे 100 मैनी टाइम मूल्यवान है। मूल्य और कीमत में क्या फर्क है? किंग एडवर्ड 5, आपने नाम सुना? किंग एडवर्ड 5, जिसने सुना वो उनका किंग एडवर्ड 5। वाह, धन्यवाद। 10-15 लोग का सोचा, बहुत अच्छा लगा। और गांधी जी का तो हम सब पहचानते हैं, महात्मा गांधी जी को तो सब पहचानते हैं, क्योंकि हमारी जेब में है। किंग एडवर्ड 5 कीमती था, गांधी जी मूल्यवान था। कीमत और मूल्य में क्या फर्क मैं आपको समझाता हूं। किंग एडवर्ड 5 एक पृथ्वी का मोर देन 25% का वो राजा था 1922 में। भारत भी उनका ही था, वो लंदन का राजा था। 1920 और गांधी जी के पास क्या था? एक पोतड़ी था, कुछ नहीं था। तो गांधी जी मूल्यवान था और किंग एडवर्ड 5 कीमती था कि पूरी पृथ्वी 25% उनका मालिक था। हम लोग तो एक कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए तो कितना खुश होते हैं। 25
पहचान नहीं हो और आप सब लोग उनको भूल गए, जो आप तो पहचानते नहीं हो। इतना कीमती आदमी को आप नहीं पहचाने, तो कीमती होना महत्व का नहीं हो, मूल्यवान बहुत महत्व का है। गांधी जी मूल्यवान, इसलिए मूल्य है, ये फैमिली मूल्य है। दूसरा, हमारी कंपनी में कोई व्यसन नहीं है। हमारी कंपनी का सेंटेंस है कि आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। व्यसन क्या आप समझते हैं? मस्ती तो मुझ में है, शराब में नहीं। अगर शराब में होती तो पतलू क्यों न उछलती। તમે કોઈ શરાબ પીધો નથી એટલે ખબર ન હોય, તમે ક્યાંય શરાબની બોટલ ઉછળતા જોઈ? પણ માણસ ઉછળે ત્યાં મસ્તી છે, મસ્તી મુજમે, આપણામાં મસ્તી છે, દારૂમાં નથી। એટલે આ દારૂની વાત વ્યસન નથી કરતો। અમારી કંપનીમાં, કારણ કે ગુજરાતમાં દારૂ હોય જ નહીં, અમારી કંપનીમાં નો ગુટખા, નો સિગાર, નો ટોબેકો। એટલે વ્યસન છોડો અગર કંપની છોડો, એ રાતોરાત નથી બની ગયું। 40 વર્ષથી એના માટે દાખલા કર્યું। એટલે આપણો સાત્વિક માણસનો મેળા માટે કંપનીનું મૂલ્ય એ છે કે 6000 માણસો નિર્વ્યસની છે, વ્યસન મુક્ત। અને અમારે કંપનીમાં નફરતને એન્ટ્રી નથી, ઓનલી પ્રેમ 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 ને પ્રેમ। આ મૂલ્ય છે ભાઈ। ઓલો ફોટો બતાવો ભાઈ, જો આ આપણું 1000 માણસનું તમને અમારું ફેમિલી બતાવું, અમારું ફોટો, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે આ 944 પર્સન હિયર। અને તમને એમ લાગે કે આ કંપનીના ફેમિલી, કંપનીના નહીં, અમારા ફેમિલી ખાલી અમારું ધોળકિયા ફેમિલી કહેવાય ને, એ આ મારા દાદા છે ઉપર, કાંજી દાદા, અને આ જે ભાઈ આખું આમાં છે ને 4 ભાઈ છે, 1 2 3 4। મારા ફાધરનું નામ લાલજી દાદા, આ ચોથા નંબર, અને મારો ફોટો અહીંયા છે। એટલે 6 ફેમિલી અને 6 જનરેશન। દર વર્ષે અમે લોકો એક વખત નવરાત્રામાં મળીએ છીએ। એટલે આ 3 વર્ષ પહેલાનો ફોટો છે, 944, હવે 1000 થઈ ગયા। હવે સમય કોઈની રાહ જોતો નથી। મને ખબર નથી કે આપણે ક્યાં સુધી બોલવાનું છે, હું જોઈ લઉં અને પૂછી લઉં। તો મને એમ છે કે આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો હોય, કારણ કે મારા 11 સેકન્ડ કરવાનું જે સમયને ન ઓળખી શકે એ કદી પણ ભગવાનને ઓળખી શકે। સમય હવે આપણે થઈ ગયો। મને ખૂબ બોલવું ગમે, કારણ કે દુનિયામાં અઘરું તો સાંભળવાનું છે, બોલવાની એટલે પણ તમે સાંભળવા માટે આટલા આનંદથી ટેસ્ટથી બેઠા, એનો મને ખૂબ જ ગૌરવ થાય છે, આનંદ થાય છે। સાહેબ, આ તમારી ખરેખર ટીમ જોઈ આટલા ઉત્સાહી છોકરાઓ તો કોલેજોમાં, સુરતની 20 કોલેજોમાં દર વર્ષે જાઉં છું। અને ખબર છે તમને, બધી વાતો કરી। આઈઆઈએમમાં ગઈકાલે મારું લેક્ચર હતો, 4 વાર આઈઆઈએમમાં જઈ આવ્યો, આઈઆઈટી દિલ્હીમાં જઈ આવ્યો, પછી પેલા પૂનામાં હા, એ હવે યાદ આવડતું નથી નામ, આપણું કામ આવડે છે તો આપણે વાતો કરવાનું હોય છે, એટલે આપણું કામ વાળી જાય। કારણ કે મારામાં કોઈ લાયકાત નથી, મને બધી ખબર છે। મારી પાસે નથી યાદશક્તિ, મારી પાસે નથી નોલેજ,
ભગવાન ચલાવે છે, ભગવાનની નજીક છે અને ભગવાને જે મેં તમને કીધું એમ જે મૂલ્યવાન જીવન બનાવ્યું છે એટલે આ બધું ભગવાન કર્યા કરે છે. એટલે તમને પણ હું કહું છું કે તમે દ્રઢ વિશ્વાસ રાખજો. તમે જે કોઈ ધર્મમાં હો, જે કોઈ હો, પણ કોઈ અદ્રશ્ય શક્તિ આ દુનિયામાં કામ કરી રહી છે. એ અદ્રશ્ય શક્તિને તમે માનજો અને ભગવાનની દયાથી તમને ભગવાને મોટરસાયકલ અથવા મોટર આપી જશે અને નહીં આપી હોય તો મારી પ્રાર્થના છે કે તમને આપશે. પણ ભગવાન આપણને મોટરસાયકલ કે મોટર એ બીજાને લડવા માટે આપતા, એ આપણને યુઝ કરવા માટે આપે છે. એટલે ક્યારેય પણ બીજાને લડવી એ રીતે ગાડી ચલાવવાની નહીં. જ્યારે સિગ્નલ ઉપર તમે ઊભા હો તો કારે આગળ સાઈડ કાપવાની નહીં. તમારી લાઈનમાં જ રહેવાનું. બીજા 10 જણા ભલે ભેગા જાય એટલે પાછું ગુજરાતી तो आपकी शिस्त, क्योंकि आप भारत का संतान है, आप सात्विक है, आप अच्छे हैं, तो अच्छे बनने के लिए हमको अच्छा फूल बनना पड़ेगा. तो अच्छी बात यही है कि हम किसी को नड़तर रूप नहीं होंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी बात करेंगे. ऐसे हमारा पार्किंग कहाँ भी हो पर हमारी कोई भी विकल्प किसी को नड़तर रूप नहीं होना चाहिए. पहला देखने का पार्किंग करके 3 बार कि मैं किसी को नड़तर रूप नहीं हूँ, फिर भी वो गाड़ी छोड़ने का. और मोबाइल में यही बात है कि अमेरिकन में एवरेज बालक 6.5 कलाक इलेक्ट्रॉनिक के साथ बिताते हैं. हमको इससे बचने का है. तो मैं ऐसे नहीं कहता आप छोड़ दो सब कुछ, नहीं, मगर उसका टाइम नक्की करो. पूरा 24 घंटे में आप आधा घंटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, 1 घंटा रहे, जो रहने का हो वो आप नक्की करो. उसके बाद उनके साथ आप उनके साथ रहेंगे. आप कुछ भी है तो आप नॉलेज, आपका भावी कर्म, आप 14 घंटा काम करेंगे. जब काम करने हमारे 8 घंटा नहीं 14 घंटा. अगर यू वांट प्रगति तो 14 घंटा आपको काम करना पड़ेगा. तो ये मेरी बात खत्म हो गई. अगर ये सेमिनार में आपको कोई अच्छी बात लगी, आज से आपका जीवन में कोई फेरफार आया और आपको कोई रास्ता मिल गया, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है. ये आपके लिए भगवान ने ये आयोजन किया था और भगवान ने मेरे द्वारा खाली बुलाया है आपके लिए. तो ये सब भगवान का है. अगर आपको कोई हर्ट हुआ और कोई मेरा अच्छा नहीं लगा, अविवेक हो गया मेरे से, तो क्षमा याचना. और ये आयोजकों को, ये भंडारी साहब के साथ पूरी उनकी टीम को मैं बहुत आभारी हूँ कि ये सब लोग को हृदय સુધી पहुँचने के लिए मेरे को यहाँ आया, मेरा मान सम्मान किया और बोलने की तब दी. आप सबका हृदय સુધી पहुँचने का मेरे को लाभ मिला, उनके लिए उसका आभारी है. और फिर भगवान ऐसे बात करेंगे तो फिर मिलेंगे.
chief guest and SRK Exports team members. Thank you so much, sir. May I now invite Dr. Sandeep Chakravarti, Dean Academics, for a vote of thanks. Sri Govind Bhai Gulabja, sir, or more popularly known as our Uncle sir, respected Dr. Neerav Mandir, members of SRK Private Limited, President, Indus University Dr. Rajesh Bhandari sir, Executive President, Major General Dr. S.S. Dasappa, other dignitaries, faculty, staff, and my dear students. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks for today's function. I am sure all of you must be now, after this mesmerizing and such a wonderful talk, I will not take much of your time, but I would like to thank sir on behalf of Indus University, a hearty vote of thanks to our guest, our dear uncle sir, for being here among the students, among our faculty members, among our staffs, and for enlightening us with your thought, with your journey in the life. And we have got a lot from today's session, and we all believe and pledge that we will take whatever has taught us today through his lectures. We will continue that, we will take it forward in our life, and we will make it a learning and stepping stone from today onwards. I would also like to extend a special thanks to Dr. Neerav Mandir, the Chief Human Capital Officer of the SRK Limited, who is being instrumental in getting sir here to the campus among us today. Maybe without him and without his support, this day would not have been possible. So thank you, sir, for making it possible. I would like to express my gratitude to President, sir, to Executive President Indus University for providing the encouragement and support. Our thanks to Register Dr. R.K. Singh and Head Corporate Affairs K.S.S. Swami. These are the two main pillars who have been in touch with Dr. Mandir and who have been coordinating on behalf of Indus University for this particular program. So Swami sir, thanks once more for making it happen for all the students, for all the faculty members, for all the staffs here. At the end, I would like to thank the directors of the institute, head of departments, head of offices, staff members who are indirectly, directly associated in making this particular function a great success. And at the last, the students for being such a decent audience and for giving your support for this particular session today. Thank you so much. Thank you all. Jai Hind. હવે આપણે સવારે વહેલા ઉઠવાના ફાયદા વિશેની વાત કરીશું. તો વહેલી સવારની તાજી હવા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે તેવું આપણા વડીલો પાસેથી સાંભળતા આવ્યા છીએ. પરંતુ વહેલી સવારે ખૂબ જ સારી ઊંઘ આવે છે અને પથારીમાંથી ઉઠવાનું પણ મન થતું નથી. તો આવી સ્થિતિમાં મનમક્કમ બનાવીને વહેલી સવારે ઉઠતા હોય તો ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે. આવા ફાયદાની જાણ તમને હોવી જ જોઈએ. તો વહેલા ઉઠવાથી આપણી પાસે સમય વધે છે, ઉતાવળ કરવી પડતી નથી, કસરત માટે પણ પૂરતો સમય મળે છે
અને સવારે વહેલા ઉઠી કસરત, યોગ, વોકિંગ સહિતનું કાર્ય પણ કરી શકીએ છીએ, જેનાથી આપણા શરીર સાથે સારો પ્રભાવ પડશે અને સમય મળવાથી ઓફિસે જવા માટે દોડધામ કરવી પડતી નથી. તો ચાલો સવારે વહેલા ઉઠવાના ફાયદા શું છે તે હવે જાણીએ. તો સવારનો સમય દિવસનો સૌથી શ્રેષ્ઠ સમય હોય છે અને તમે તરોતાજા અનુભવ કરો છો. વહેલા ઉઠવાથી ભરપૂર સમય મળે છે, પરિણામે કોઈને કામે ઉતાવળ કરવી પડતી નથી. સવારના સમયે તમે વિચલિત થયા વગર જ કોઈ પણ કામ ઝડપથી પૂરું કરી શકો છો. આખા દિવસનું પ્લાન ઘડી કાઢવામાં પણ વિચારી કરી શકો છો અને સવારના સમયે માનસિક રીતે ખુશનુમા અનુભવ કરો છો. તો સવારનો નાસ્તો કરવાનો સમય મળે છે. વહેલા ઉઠવાથી આરોગ્યપ્રદ નાસ્તો બનાવવાનો સમય મળી જાય છે અને જે લોકો વહેલા ઉઠે છે તેમને પરિવાર સાથે નાસ્તો મહત્વપૂર્ણ આહાર છે. જો તમે દિવસની શરૂઆતમાં જ કરો તો ખૂબ સારી ઉર્જા આપે છે, માટે વહેલું ઉઠવું જોઈએ. ઘણી વખત સવારનો નાસ્તો સ્કીપ કરવાની ફરજ પડે છે, જેથી દિવસે ભૂખ લાગે તો આપણે ગમે તેવું ખાઈને પણ ભૂખ શાંત કરીએ છીએ, જે સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે અને તણાવ મુક્ત દિનચર્યા પણ મળે છે. વહેલા ઉઠવાથી તમને આખા દિવસનો પ્લાન બનાવવાનો સમય મળે છે. આગોતરી યોજના બની હોવાથી કામ પૂરું કરવામાં ઉતાવળ કરવી પડતી નથી. પરિણામે તમે તણાવ મુક્ત રહો છો. આ ઉપરાંત તમે વહેલા ઉઠો છો તો તમારી પાસે એટલો સમય હોઈ શકે છે, તે સમયનો તમે ઉપયોગ તણાવ મુક્ત રહેવા માટે કરી શકો છો, જેનાથી તમને શાંત રીતે કામ શરૂ કરવામાં મદદ મળશે. આ ઉપરાંત રાત્રે સારી ઊંઘ આવે છે, કારણ કે વહેલા ઉઠનારા અને રાત્રે વહેલા સૂઈ જાય છે. સવારે વહેલા ઉઠવાથી આદતની સારી રાતે ઊંઘ આવે છે, જેના કારણે સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. સકારાત્મકનો સંચાર થાય છે. સવારે વહેલા ઉઠવાથી તન અને મનમાં સકારાત્મક સંચાર આવે છે, જેના કારણે જે લોકો વહેલા ઉઠે છે તેઓ થોડો સમય માટે નહીં પરંતુ જીવનભર માટે ખુશ રહે છે, તેવું એક સંશોધનમાં પણ સામે આવ્યું છે. અને દરરોજ કસરત કરવાનો સમય મળે. સવારે કસરત કરવી ખૂબ જ સારું માનવામાં આવે છે, જેમાં શરીર અને મન તંદુરસ્ત રહે છે. સવારે કસરત કરવાથી શરીરમાં બુસ્ટ પણ થાય છે.